हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं कैपिटल बजटिंग एंड सीएस एग्जीक्यूटिव में भी ये टॉपिक है। सीए के इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पे भी ये टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो हम सीएस एग्जीक्यूटिव में आज बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग एंड इन द लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू, वी डिस्कस्ड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो लेट अस नाउ कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक अगेन। मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम practical questions so that you can clear out the doubts if you have any doubts regarding the practical application of this topic. ठीक है, then we will further move on to the IRR concept, but first of all we should know how to apply NPV and how to apply PI ratio. So let us start with an example again. Today we are comparing two projects, project A and project B. The details are as follows. Initial investment, let me just present the question properly. Initial investment rupees 10 lakhs, 15 lakhs. Life of project, let it be same, 5 years. Annual CFAT in rupees. Cash flow after tax annual. In this case it is and here it will be 12,50,000 around. Let me change this. Cost of capital, discounting rate 10%, 10%. Done. So these are the details given. Now on this basis we need to find out the best project or the better project as per the NPV approach and otherwise as per the PI ratio. So let us start first with the NPV approach. Okay, so let's start first. In project A, if you wish to find out NPV, you know the formula. NPV is present value of cash inflow minus initial cash outflow. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे present value of cash inflow find करने की कोशिश करेंगे. If the annual cash flow is same, it is an annuity, 3 lakh rupees every year, same. तो हमें पता है कि we can use GT factor. 5 साल का GT factor कैसे निकालेंगे? इसके लिए सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 3 लाख रुपीज इंटू द जीटी फैक्टर। जीटी फैक्टर 10% के लिए निकालना है 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 जीटी। द फैक्टर इज 3.79, ठीक है, इंटू 3 लाख रुपीज। दिस विल बी 11,37,236, ठीक है। और इसके बाद एनपीवी फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसमें से माइनस करना है इनिशियल कैश आउटफ्लो। NPV done. Next, again same thing for project B. GT फैक्टर तो सेम ही आने वाला है, into
This is also positive, this is also positive. If you select on the basis of NPV, the greater or the higher the NPV is better. So ये better हो गया ना. NPV किसका ज़्यादा है? Project A का. So ranking on the basis of NPV, Project A will be selected. Next, PI ratio. आपको पता है PI ratio क्या होता है? Present value of cash inflow divided by initial cash outflow. Done. So dividing these two, this upon this, here you will get 1.137236. पूरा लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? And here so you can see again on the basis of TI also this project is better. So in both the scenario, because if PI is higher, then the chances of recovery or the amount of recovery is better. Not the chances, this is not probability, but जो amount है वो ज़्यादा आपको recover करने को मिलेगा. तो NPV क्या है, PI क्या है, आपको पता चला. चलो एक और एग्जाम्पल हमने देख लिया, कंपैरिजन वाला केस देख लिया. ऐसे कुछ सम्स होंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट क्या है देखते हैं. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर. वी सॉ व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी. फर्स्ट पॉइंट, इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, यू रिमेंबर रिजल्ट क्या था? यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. ये ध्यान रखना, इफ एनपीवी इज 0 ग्रेटर देन 0, देन पीआई विल बी ग्रेटर देन 1. रिमेंबर दैट, बिकॉज दिस इज अ रेशियो एंड रेशियो इज हायर देन 1, देन इट इज बेटर. PI का मतलब क्या था? Present value of cash inflow divided by initial cash outflow. So if the ratio is greater than 1, that means the present value of your cash inflow is higher compared to your initial investment. So obviously ratio is greater than 1, and thus you should invest in the project. So these two situations are same. Whenever the NPV is positive at that point of time, in that given case, PI will be greater than 1. You should accept the project. This is first scenario. If NPV is less than 0, PI will be guaranteed less than 1. You can try it for any question or any number or any data which you can think of or which you solve. Reject the project. Third scenario. If NPV is equal to 0, PI will be 100% equal to 1. It is indifference point. None? Clear? So this is the point, this is the decision making process on the basis of NPV and PI. This is very important table for MCQ exams as in CS executive program. So this table is very much important because आपको फॉर्मूला तो पता है बट सोचना नहीं आता है. तो यू नो डिसीजन इससे लिए जाता है. डिसीजन आप इसके बेसिस पे ले सकते हो. कैलकुलेशन आपका स्टाफ करके दे देगा आपको प्रैक्टिकली, बट दिस विल हेल्प यू टेक द डिसीजन दैट वेदर टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट और नॉट. डन. तो ये हो गया एनपीवी और आपका पीआई एक बार फिर से कुछ सम्स के साथ और फाइनल डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ आके अब जो है एनपीवी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हुआ. तो आई होप यहाँ तक आके आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू सॉल्व the sums of NPV and PI अब पता चला होगा. तो after this we can move on to the next topic. See again for the next topic, which is called इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, IRR. सो व्हाट इज IRR एग्जैक्टली? आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर दिस. एक एग्जांपल लेते हैं, एक डेटा लेते हैं. अगेन इनिशियल कैश आउटफ्लो
10 लाख, अभी जो लिया था वही डेटा ले रहा हूं। लाइफ 5 years, एनुअल कैश फ्लो 3 lakhs, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, एंड जब प्रेजेंट वैल्यू निकाला हमने कैश इनफ्लो का तो इट वाज समथिंग 11,36,000। गिन लेते हैं एक बार। Approx, and thus you got NPV positive 1,37,000। ऐसे कुछ किया था अभी। Now just see what is IRR. This is the actual cost of capital. You know, 10% कॉस्ट पे आपने जो पैसे कमाए हैं, यहां मैं उसकी बात कर रहा हूं। जस्ट अ मिनट। ओके, हमने 10% रेट पे जो पॉइंट ये है कि हमने जो पैसे कमाए हैं वो ये है 3 लाख रुपए पर एनम। हमने इसमें से 10% ब्याज चुका दिया, उसके बाद भी हमारे पास एंड में एक पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है। What does this suggest? It shows that we have recovered 10 lakh rupees initial investment, plus we have recovered this cost of capital for 5 years, and after that we have a surplus of 1,37,000 rupees. Clear? So this is the point. That means the rate at which actually we have earned our returns, वो रेट जिस पे हमने एक्चुअल में प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, रिटर्न्स अर्न किए हैं परसेंटेज के फॉर्म में, वो कितना होगा? 10% से कम होगा, 10% होगा, या 10% से ज्यादा होगा? ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली वो जो रेट है वो 10% से कुछ ज्यादा ही होगा, बिकॉज ये आपका खर्चा है। 10% का ब्याज भर के भी आप अगर कुछ कमा रहे हो तो आप तो 10% से ज्यादा ही कमा रहे हो ना। अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन 8% है तो मैं 11% पे लोन क्यों लूंगा बैंक से? ये तो 3% जेब से देने वाली बात हो गई। हाँ, लेकिन अगर बैंक का लोन 11% पे मिल रहा है बट मैं 16% कमाता हूं तो 5% बचेगा। आया समझ में? कुछ वैसा है। नाउ इन दिस सिचुएशन आई वांट टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट परसेंटेज एट विच आई हैव एक्चुअली अर्नड माय रिटर्न्स। दैट मीन्स व्हाट इज माय internal rate of return, that is the term, the actual rate at which I have earned my return, that is the internal rate of return. Now let us check out how to calculate this. Data आपके पास है पूरा, आप नोट कर लेना उसको। मेथड बता देता हूं। Here we use a method called interpolation method. ठीक है, the method which we are using here is called interpolation method. See, we use a timeline like structure. Yes, we can place NPV, this is a point where NPV is 0. This is a point where NPV is 1,37,000, and this is a point where NPV is something negative. When you discounted the annual cash flows, ध्यान से समझना, when you discounted the annual cash flows of 3 lakh rupees per annum by 10%, your your NPV was 1,37,000। ठीक है, इसको ना थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं कि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो, आपसे कंफ्यूजन हो जाएगा। उल्टा लेते हैं इसको। At 10% discounting rate, your NPV was positive 1,37,000. If you decrease the rate, means अगर आप गिनते हो, डिस्काउंट करते हो 8% पे, तो ऑब्वियसली NPV तो और बढ़ जाएगा। आप सोचो इस सिचुएशन में जब 10% डिस्काउंटिंग रेट पे आपका प्रॉफिट हुआ है तो
तो आपने 10% से ज्यादा कमाया होगा या कम कमाया होगा? ऑब्वियसली ज्यादा कमाया होगा। तो एक ऐसा परसेंटेज तो आएगा जिसपे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और इनिशियल आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। मैथमेटिकली ऐसा बोला जाता है, द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0, दैट रेट इज इक्विवेलेंट टू आईआरआर। वापस बोल रहा हूं, the rate at which NPV is equal to 0 is IRR. This is the rule. अब ये रूल है ना, रटने वाला रूल नहीं, समझने वाला रूल है। एक्चुअली देखो, NPV अगर 1,37,000 है तो कितने परसेंट पे? 10%। ये पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट है ना NPV 0, ये वो पॉइंट है जहां पे आपका इनफ्लो और आउटफ्लो एक बराबर हो जाता है। मतलब जितना आपको एक्चुअल में पैसा चाहिए था बैंक का ब्याज भरने के लिए और अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए, आपने एग्जैक्टली उतना ही अर्न किया है। यही होती है ना बात। तो एट दैट पॉइंट एनपीवी इक्वल टू 0, दिस इज दैट पॉइंट वेयर एनपीवी एंड आईआरआर इज इक्वल, क्योंकि आपने एग्जैक्ट उतना कमाया। आप सोच लो इस सम में अगर 10% डिस्काउंटिंग रेट है और आपने 10% ही कमाया होता तो आपका एनपीवी 0 आया होता। आइए बात समझ में। तो उसी लॉजिक को हम यूज करके सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आएगा। इतना समझ आया? आप देखो क्या करना है। रैंडमली हमें डिस्काउंटिंग रेट्स लेने पड़ेंगे और एक ऐसा रेट ढूंढना पड़ेगा जिसपे हमारा एनपीवी 0 है। अब एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा रेट ढूंढेंगे यहाँ पे y% जहां पे हमारा एनपीवी नेगेटिव आ जाए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एनपीवी विच इज नियरेस्ट टू 0, नियरेस्ट टू 0। तो 10 था ना, मैं डायरेक्टली बाय 15 लेता हूं। डिस्काउंटिंग द सम एट 15%, 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 साल था जीटी। द फैक्टर इज 3.352। आप भी देख लो, 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जीटी। फैक्टर आना चाहिए 3.352 इनटू 3 लाख रुपीज। ये आ रहा है 10,05,640, जस्ट अ मिनट, हाँ 10,05,646.5 ऐसा कुछ अमाउंट आएगा, माइनस 10 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव आ रहा है। मैंने जब 15% पे लिया तो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें तो और उस तरफ जाना है। लेट अस चेक आउट ऑन 16, क्योंकि काफी क्लोज हो गया। 1 2 3 4 5 खेलते रहो। हाँ आ गया नेगेटिव 9,82,288 माइनस 10 लाख। दिस इज नेगेटिव, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में रखा है। तो 15% पे पॉजिटिव एनपीवी, 16% पे नेगेटिव एनपीवी, तो 0 एनपीवी इसके बीच में ही कहीं होगा। अब हमें 2 रेट मिल चुके हैं, अब हमें आगे एग्जैक्ट रेट ढूंढना है डेसिमल में। इसके बेसिस पे ढूंढ सकते हैं 5647 और 17712। डन, ठीक है। अब देखो कैसे आगे सॉल्व करना है। ये इंटरपोलेशन ना, बड़े बड़े नाम छोड़ दो। दिस इज जस्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैथ्स में पढ़ते हैं प्रपोर्शन, दिस इज जस्ट प्रपोर्शन। आई टेक 15% एज माई बेस, प्लस आपको 15 से जाना है 16 की तरफ, तो यू हैव टू यूज प्लस। अगर आप 16 को बेस बनाओगे तो यू हैव टू गो रिवर्स, पे माइनस करना पड़ेगा। 15% प्लस। Now, what is the distance between these 2 points? This is 5647, this is 17712 नेगेटिव। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप अगर यूनिट्स में गिनोगे तो इट विल बी 5647 to 0 and then 0 to 17,000। तो 5647 plus 17712, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज
23,359 यूनिट्स, बट आपको यहां से कहां तक जाना है, सिर्फ 0 तक। सो योर डेस्टिनेशन इज एट 5647 स्टेप्स और यूनिट्स, ठीक है, डन। अब देखो ये रेशियो आपको पता चल जाएगा। इसमें एक पॉइंट होता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 और 16 के बीच में 1, तो यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लायर लेना होता है 1। अगर ये 15 और 20 होता सपोज, और उसके बीच में डायरेक्ट निकाल रहे होते, तो आपको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होता। उसका रीजन ये है कि दिस प्रपोर्शन इज फॉर 1%, फॉर 1% गैप, बट इफ द गैप इज ऑफ 2% यू हैव टू टेक 2, इफ द गैप इज ऑफ 5% यू हैव टू टेक 5, ठीक है। ये प्रोपोर्शनेट कितना है वो आप निकाल सकते हो, 5647 डिवाइड बाई 23359 into 1, 0.2417 परसेंटेज है, यू कैन कीप इट अप टू 2 decimals, 15.24%, दिस इज योर IRR। तो फाइनली जो IRR की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 15.24%, डन। सो इस तरीके से हम IRR ढूंढ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन मेथड, ध्यान रख के चलना। अब आप बोलोगे सर 15 और 20 यूज कर लेते तो इजी रहता ना, 10 और 20 यूज कर लेते, फालतू में आपने पहले 15 गिनवाया, फिर आपने 16 गिनवाया, फिर आप बीच में उसमें 15.24 बोल रहे हो, तो 10 और 20 ले लेते, क्या फर्क पड़ता है, बीच में आने वाला है ना। जितना आप गैप ज्यादा रखोगे परसेंटेज में, ठीक है, उतना आंसर की एक्यूरेसी पे फर्क पड़ेगा। यू कैन ट्राई अगेन, आप 10 और 20 ले लो, सेम मेथड से आंसर निकालो, ठीक है। आपका आंसर 15.24 के बदले 25, 29, 20 उतना डिफरेंस आ जाएगा। तो द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज व्हेन यू टेक द गैप ऑफ 1%। इफ क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो कि परसेंटेज दे रखे हो, ऐसा कुछ बोला हो कि इनके बीच में इस पे ही चेक करना है, देन इट इज अनदर थिंग, बट यूजुअली हम 1% के गैप पे लेते हैं। आगे समझ में, तो बस ये आपका IRR कंसेप्ट हो गया। तो आई होप यहाँ तक तो कोई क्वेरी नहीं आई होगी। तो हमने NPV, PI, IRR ये सब समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। मैं आपको इसके ऊपर फिर से एक और एग्जांपल करवाऊंगा। तो अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, तो जैसे आज हमने NPV और PI के सम्स देखे, वैसे ही अगले लेक्चर में हम पहले फिर से फ्रेश एक इंटरपोलेशन या IRR का क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे। बट बिफोर एंडिंग मैं आपको इसका एक कंक्लूजन बता दूंगी। इस क्वेश्चन में हमारा IRR आया 15.24, मतलब दिस इज द एक्चुअल रेट जिसमें मैंने पैसे कमाए हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था, 10% जो मैंने चुकाया है। तो मेरे पास जो सरप्लस बचा है वो होगा 5.24%, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सरप्लस जो है ये आपको मैंने बता दिया कितना होगा। अब देखो यहां से ये पता चल रहा है कि इफ अगेन डिसीजन मेकिंग, इफ IRR इज ग्रेटर देन COC देन प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हो। इफ IRR इज लेस देन COC, रिजेक्ट, जेब से पैसे देंगे, ब्याज रिकवर नहीं होगा। इफ IRR इज इक्वल टू COC इन डिफरेंस पॉइंट, पता चला। अच्छा ये वही पॉइंट्स है, यहाँ पे NPV गारंटी पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पे PI गारंटी ग्रेटर देन 1 रहा होगा, यहाँ पे NPV लेस देन 0, PI लेस देन 1, NPV इज 0, PI इज 1, ये वही टेबल है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा डिसीजन मेकिंग का एक चार्ट बना के बताया, डन, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से, ध्यान रख के चलना। बस बाकी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो और हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।